the proper syllabus structure. Okay, हम लोग अभी आज क्या करेंगे, हम लोग आज शुरू करेंगे with chapter called some basic concepts in chemistry, and there is another chapter called analytical introduction to analytical chemistry. ये दो चैप्टर्स है आपके, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2. ओके, उनको डिस्कस करते करते वी विल बी डिस्कसिंग द एमसीक्यूज आल्सो. ओके, सो आवर नेक्स्ट स्टेप, अभी ये आज से लेके जो अभी अगले आने वाले जो 2-3 लेक्चर्स होंगे, वो 2-3 लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड प्लस सीईटी जेडबलई नीट के एमसीक्यूज थोड़े बहुत ऑफ दीज 2 चैप्टर्स विल सॉल्व टुगेदर, ओके, इन द क्लास. सो दिस इज आवर एम फॉर द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स. ऑलराइट, सो शुरू करते हैं वंस अगेन with some basic concepts in chemistry. थोड़ा बहुत हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया है, okay, but we'll start fresh. Okay, so starting with some basic concepts in chemistry, the first thing that comes to our mind is what is chemistry. Okay, so हम लोग ने इसका definition भी किया था. Alright, what is chemistry? It is a branch of science that deals with what? Anyone who would like to answer this question? Chemical reaction. Okay, Matter, its composition, its structure, and its interaction with other forms of matter. Very nice. Okay, so chemistry is a branch of science that deals with matter. वो किससे बनता है? That is its composition, its properties, and its relationship with other forms of matter. बराबर है? So it is a branch of science that deals with matter, its composition, its structure, and relation with other forms of matter. बराबर है? जो आप केमिकल रिलेशन बोल रहे हो, डेफिनेटली दैट इज नथिंग बट रिलेशन और इंटरैक्शन विद अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर. ओके, दैट इज कंसिडर्ड एज फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस. ऑलराइट, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर, its composition, its structure, and the relationship with other forms of matter. Now इसमें एक word आ गया है अपना matter. We have studied since school days, matter is anything that occupies space and has mass. Okay, but matter is then further divided into 2 types of substances, pure substances and mixtures. बराबर है? So when I talk about matter, we have pure and mixtures. In pure we can further have what? We have elements, Compounds and compounds. Very good. Okay, ये दो चीजें हैं. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं, फिर कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, वो हम सब एक एक करके डिस्कस. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, 1, 2 and 3. ओके, सो इतना हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो एलिमेंट्स हम लोग ने डिस्कस किया है एक बार. व्हाट इज एन एलिमेंट? A substance that cannot be anyone Decomposed further. simpler Very good. substances. into simpler substances. Okay, a substance that cannot be decomposed further into simpler substances. उसको अभी हम और छोटा नहीं कर सकते. Okay, a substance that cannot be decomposed further into simpler substances. How many elements do we have with us? 118. 118 elements. 92 are naturally occurring, and remaining how many? 26 synthetic. Yes, 26 are synthetically prepared. Okay, so these are the total number of elements that we have with us. Okay, element का छोटा भाई कौन? Atoms. Atoms. Very good. Element का छोटा भाई atom. Okay, atom क्या करता है? What is atom? It is the smallest individual. Yes, so see, abhi as per the Dalton's atomic theory,
जो हमको सबसे पहले आई थी उसमें वर्ड था इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल. ओके, बट लेटर आगे जाके पता चला था हमको कि यार ये एटम को तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. मतलब एटम के नीचे भी कोई और है. अकॉर्डिंग टू द ओल्ड थियरी ऐसा था कि एटम के अलावा और कोई है ही नहीं. बराबर है. तो तभी हम इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल यूज करते थे. बट नाउ what exactly happens is, if we want to go for the actual scientific definition, so it can be written in this way: it is the smallest particle of an element that gives the same property as that of the entire element or as that of the whole element. Okay, so it is the smallest particle of an element that gives the same property as that of the whole element. मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसकी प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए. ओके, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम लोग एलिमेंट को देखेंगे तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल अभी एटम नहीं है. अब एटम के नीचे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को देख के अपने को एलिमेंट के बारे में पता चलेगा क्या? नहीं. लेकिन एटम को देख के अपने को एलिमेंट के बारे में पता चलेगा. सो एटम वो बंदा है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, जिसकी प्रॉपर्टी और एलिमेंट की प्रॉपर्टी एकदम सेम है. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that gives the same property as that of the whole element. Okay, so that's the basic difference between the definition that we have studied before and the definition that we are looking at right now. Okay, it is the smallest particle of an element that gives the same property as that of the whole element. All right, तो एक काम करो गाइज, आप लोगों ने भले ये पहले शायद लिखा होगा, बट एक बार प्यार से पूरा फ्रेश शुरू कर दो. चलो अच्छे से लिखना. डन. Yes, sir. Yes. ये लिखो फटाफट, बेसिक सी चीज है. Done, sir. Okay, great. Write this down. Guys, done? Yes, sir. No, sir.
चलो great. So I hope everybody has finished writing. So अभी please आगे. wait. Okay, waiting. Done. Yes, sir. Okay. So अभी आगे देखते हैं. हम लोग ने atoms देख लिया. Let's take this further. Okay. Now we know group of atoms जो होता है. Okay, when a group of atoms combine, we have two options. We have a molecule. Sorry, we don't have two options. We have only one option. Okay, and that is a molecule. Now, molecule could be further categorized into two different ways. Okay, if they are of the same element and they are of different elements. Different element. Okay, which can be called as a compound. Okay, so when atoms of the same element combine, okay, and यहाँ पर we have atoms of different elements combined. तो एग्जांपल यहाँ पे क्या था O2, H2, N2, F2, H2, N2, Br2, Cl2, I2. Okay, these are all examples of your elemental molecules. बराबर है? They are of the same element. Alright. On the other hand, compound में क्या था अपने पास? Compound में different elements like H2O, NH3. carbon dioxide, ammonia. You can also have say benzene. Okay, anything. So many different things that we know. NaCl. Okay, or so many different things that we know. They are atoms of different elements that combine with each other to form a compound. So we have a group of atoms that forms what? A group of atoms forms a molecule. Molecule can be divided into two categories, either an elemental molecule or a compound molecule. Okay, quickly write this down. Done? Yes, sir. No sir, wait. लिखो आराम से गाइस. ये आई नो आप लोगों ने एक बार पहले लिखा है, बट आई वांट एवरीवन टू हैव इट इन अ फेयर बुक प्रॉपर. ओके, जब वापस मिलेंगे ना चेक करूंगा अलग से ठीक से लिखा हुआ होना चाहिए. Done, sir. Okay, great. So now talking about the next one is the अभी molecules हो गए. अभी बात करते हैं mixture की. When group of elements combine, okay, group of elements combine, we have studied mixtures. देखते हैं क्या होता है mixture और compound. Okay, group of elements combine. What do they form?
they form either a compound or a mixture. Okay, they form either a compound or they form a mixture. So compound कैसे बनता है, sorry mixture कैसे बनता है? Let us see. What happens Homogeneous is, and heterogeneous. sorry, ओके नहीं, आपने जो बोला वो सही है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. अभी हम लोग पहले प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कंपाउंड और मिक्सचर की, और फिर हम मिक्सचर्स पे आएंगे इंडिविजुअली. ओके, सो मिक्सचर में क्या होता है, द एलिमेंट्स और द कंपोनेंट्स, or you can say the constituents can be separated by simple physical processes. जैसे आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम सैंडविच की बात करते हैं तो सैंडविच अगर एक ऑलरेडी बन चुकी है, पर उसमें से अभी आपको अगर टमाटर नहीं चाहिए, तो आप बहुत आसानी से ब्रेड उठा के टमाटर बाहर निकाल के वापस ब्रेड का स्लाइस आप रख सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. बट दैट इज नॉट द केस विद द कंपाउंड. कंपाउंड में क्या होता है, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड. The components cannot be separated by simple physical processes. Okay, जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो हमने कंसिडर किया था, तो आप पानी की बाल्टी में ऐसे हाथ डाल के आप ऑक्सीजन अलग सेपरेट नहीं कर पाओगे, बट सैंडविच में हाथ डाल के आप डेफिनेटली टमाटर निकाल पाओगे. ओके, सो दैट्स द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड. उसके अलावा the components do not react chemically. यहाँ पे रिएक्शन होता है तभी जाके तो कुछ नया बनता है, बराबर है. सो यहाँ पर द कंपोनेंट्स रिएक्ट केमिकली. ओके, so you have the compounds. आपने देख लिया, मिक्सचर आपने अभी देख लिया. What was the other property, anybody, for mixture and compound? The constituents do not have a fixed ratio. Very good. Cannot से बदले do not. Yes, very nice. कि मिक्सचर में जब हम सैंडविच खाते हैं या सेव पूरी खाते हैं, ऐसा कुछ खाते हैं, तो कोई क्वांटिटी का रेशियो फिक्स्ड नहीं है. इट कैन चेंज. किसी को चीज ज्यादा चाहिए, किसी को चटनी ज्यादा चाहिए, किसी को टमाटर ज्यादा चाहिए, सम इट कैन चेंज. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर or I will frame it in a better way. The ratio of the constituents is variable. Okay, variable मतलब it can change. यहाँ पे क्या है, the ratio of the constituents Combines in a fixed ratio in a compound. yes is a fixed value, or you can say is constant. Okay, the ratio of the constituents is constant. यहाँ पे the ratio of the constituents is variable. उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी थी, that the constituent elements retain their original properties. Okay, the constituent elements retain their original properties. All right. On the other hand, यहाँ पे क्या है, the property of the mixture, the property of the compound, Is is different than yes, is different than what?
constituent element. Very good. Different than the properties of the constituent elements. ओके नाउ इसमें क्या है, आपको वापस से समझा दूं कि प्रॉपर्टी कैसे अलग है। जैसे हम लोग ने डिस्कस किया है पहले भी कि अगर मैं सैंडविच में चीज डाल के खाता हूँ, या वही चीज अगर मैं पाव भाजी में खाता हूँ या सेव पूरी में खाता हूँ या अलग से खाता हूँ, ओके, तो चीज की प्रॉपर्टी चेंज होने वाली नहीं है, चीज तो चीज ही रहेगा। ओके, सो दैट्स अ मिक्सचर। ओके, even though you eat it with anything or independently, the property does not change. But on the other hand, when I talk about water, तो we know that water बनता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से टू फॉर्म H2O। अब आपको भी पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूजुअली गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि वाटर यूजुअली लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो देखो, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की अलग है और वाटर की अलग है। आपको ये भी पता होगा कि हाइड्रोजन इज फ्लेमेबल इन नेचर, मतलब ये खुद जलता है, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग एंड वाटर एक्सटिंग्विशेस द फायर। सो मतलब क्या है कि ये जलता है, ये जलाता है और ये आग बुझाता है। ओके, मतलब तीनों की प्रॉपर्टी एकदम से ही अलग अलग है। ऑलराइट, सो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज डिफरेंट देन द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। प्लीज राइट दिस डाउन गाइस, एवरीवन। Done? No, प्राची बेटा, हमारा टॉपिक ही वो है कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन तो या तो मिक्सचर बनेगा या तो कंपाउंड बनेगा। Guys, done? Yes, sir. Sir. yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी Yes, नाइस। sir. सो अभी हम लोग ने देख लिया कि यार ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, सब अभी हम लोग ने मैटर के बारे में सब हम लोग ने पढ़ लिया है। सो वी आर गुड टू गो, वी विल टेक इट फर्दर। ओके, एक जो टॉपिक है छोटू सा वो देख लेते हैं हम लोग, मिक्सचर्स
can further it be classified into heterogeneous and homogeneous? Homo means same, hetero means different. ओके तो अभी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में फर्क क्या है कि होमो मतलब क्या होगा कि जब आपको देख के पता नहीं चलेगा कि ये अलग अलग लोग है, लाइक एयर, यू नो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, बट आपको ऐसे हवा में देख के पता चलता है क्या अरे ये ऑक्सीजन जा रहा है, अरे ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ऐसा अपने को देख के पता नहीं चलता है, बराबर है. सो क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर इज एयर, एवरीथिंग इज इन अ सिंगल फेज. ओके, एवरीथिंग इज इन अ सिंगल फेज, सबके सब गैस में आपको देख के पता नहीं चलेगा. बट व्हेन आई टॉक अबाउट अ सैंडविच, और आप लोग को घर पे आप लोग शायद चिवड़ा या कुछ खाते रहेंगे, तो उसमें आपको देख के पता चलता है कि ये कौन है, ये सिंग है या ये सेव है या ये कांदा है, वो देख के आपको पता चलता है, which is not the case with a homogeneous mixture. So that's the primary difference between heterogeneous mixture and a homogeneous mixture. Heterogeneous mixture has multiple phases, okay, and homogeneous mixture has a single phase. Please write this down. Okay, Yes. chalo, great. So now we have seen everything about matter, compounds, mixtures, everything. तो अभी हम लोग आगे जाके देखते हैं व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं. तो उसमें है मास है, लेंथ है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ओके, एंड प्रेशर. सो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट विल बी ट्राइंग टू मेजर, जो हम लोग को केमिस्ट्री में भी काफी यूज होने वाली है. ऑलराइट, सो सम फिजिकल मेजरेबल प्रॉपर्टीज इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. Okay, so starting with the first one is obviously mass. तो मास में वी नो यूजुअली द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, तो ये हम लोग याद रखेंगे, मास को हम केजी में ही लिखेंगे ज्यादातर. लेकिन केमिस्ट्री में हम लेबोरेटरी लेवल पे जब हम देखते हैं तो हम थोड़ी किलो किलो वजन उठा के लेके आते हैं, हम ग्राम्स में खेलते हैं इन अ लेबोरेटरी. सो वी शुड नो दैट 1 kg इज 1000 grams. और उल्टा कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए, दैट 1 gram is 10⁻³ kg. ओके, इनफैक्ट ये वाला कैलकुलेशन ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको फाइनल आंसर लिखना है किलोग्राम में, जबकि आपको डेटा दिया गया है ग्राम में, तो आपको ग्राम टू किलोग्राम आना जरूरी है. केजी टू ग्राम आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट ग्राम टू किलोग्राम जरूर आना चाहिए. ओके, 1 gram is 10⁻³ kg. इतना ध्यान रखना, अगर आगे जाने के लिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पीछे आने के लिए डिवाइड करना, बस सिंपल सी चीज रखना, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है. ओके, the next we have is volume. अब वॉल्यूम में आइडियली होना चाहिए मीटर क्यूब एज पर द एसआई यूनिट्स, बट हम लोग ज्यादातर डेसीमीटर क्यूब लिखते हैं. ओके, आपको मैं सारे ही बता देता हूँ, तीनों यूनिट्स बता देता हूँ. वी हैव अ मीटर क्यूब, we have a decimeter cube, and then we have a centimeter cube. Okay, तो पहले एक स्टेप कर दे. 1 meter is 10 decimeter and it is equal to 100 centimeter. तो अगर सर आप इधर क्यूब करोगे ना तो आपको सब जगह क्यूब करना पड़ेगा. ओके, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्यूब कर रहे हो, 1 को क्यूब दे रहे हो, तो आपको 10 को भी क्यूब देना पड़ेगा.
और ये 100 है, 100 मतलब 10⁻², और उसको अगर मैं फिर से क्यूब दूंगा तो टोटल हो जाएगा 10⁻6, बराबर है। तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, डीएम क्यूब इज नथिंग बट लीटर एंड सीएम क्यूब इज नथिंग बट मिलीलीटर। ओके, ये ध्यान रखना, आगे जाके काम आएगा। एक लीटर है और एक मिलीलीटर। अब अगर उल्टा करना हो तो क्या, तो जो मैंने ऊपर आपको दिखाया कि जाते टाइम पे अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आते टाइम पे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, बराबर है। तो ये 10⁻6 को नीचे लेकर आओ सब जगह इधर। सो समथिंग लाइक दिस, ये 10⁻6 इसको भी डिनोमिनेटर में दो और इसको भी डिनोमिनेटर में दो, देखो क्या होता है। तो आई विल हैव 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू -6 और +3 -3 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन डीएम क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब। पर आपको मैं ऐसे इंडिविजुअली समझा दूं, 1 डीएम क्यूब is 10⁻³ meter cube and 1 cm cube is 10⁻6 meter cube. ओके, तो ये बेसिक सी कन्वर्जन्स है, थोड़ी ध्यान रहनी चाहिए। ओके, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में आएगा तो यू शुड बी एबल टू आंसर दीज कन्वर्जन्स। ओके, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। ऑलराइट, ये हो गया। और ये कन्वर्जन, ये दो कन्वर्जन्स अभी तक हम लोग ने सीखी है, ये पता रहनी चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं। So we are done with mass, we are done with volume. Since mass and volume is done, let's talk about the next one, that is density, which is mass upon volume, as we all know. Mass upon volume. So it can be in terms of kilogram per meter cube usually, or kabhi it is also in grams per decimeter cube. It is also calculated as grams per centimeter cube. ओके, बहुत सारे यूनिट्स है, ग्राम्स पर लीटर है, ग्राम्स पर मिलीलीटर भी है, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी है। ओके, तो हम लोग तीनों का कन्वर्जन देखते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। विल टेक ऑल द थ्री। 1 kg पर मीटर क्यूब। ओके, 1 kg मतलब कितना ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हो गया। और 1 मीटर क्यूब मतलब कितना सेंट, अपन ये ले लेते हैं ना, डीएम क्यूब ले लेते हैं। चलो, तो 1 मीटर क्यूब कितना डीएम क्यूब होता है, ये देखो, 1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ डीएम क्यूब, बराबर है। तो वो भी 1000 हुआ, 1000 कैंसिल, क्या बचेगा, 1। तो सिंपल सी चीज है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज एज गुड एज ग्राम पर डीएम क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर डीएम क्यूब में कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, सो अभी देख लेते क्या हो जाएगा। 1 kg पर मीटर क्यूब इज 1000 ग्राम्स, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, केजी, 10⁻6 है ना, तो 10⁻6 आ गया। अब वो 6 अगर ऊपर गया तो -6 हो जाएगा, तो +3, इसका +3 और -3, वेरी गुड। सो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब will be 10⁻³ grams per cm cube. ओके, सो ये आपको बेसिक सी चीजें पता रहनी चाहिए, बेसिक कैलकुलेशंस है, कन्वर्जन्स है, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। ओके, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स है ना, यूजुअली ग्राम्स वाले में ही आएगा, और आपको शायद फाइनल यूनिट किलोग्राम में लिखनी पड़े। ज्यादातर हम लोग ग्राम्स में ही लिख देते हैं आंसर भी, ऐसे प्रॉब्लम नहीं आता, बट एक आध टीचर अगर एड़ा निकला तो फिर आपका मार्क्स जा सकता है। ओके, तो वैसा सिचुएशन है, तो जरा ध्यान रखने का कैलकुलेशंस में। प्लीज राइट दिस डाउन, मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। फिर आगे देखते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर।
Done? Done, sir. Yes, sir. Okay, very nice. चलो अभी आगे देखते हैं. So we are done with mass, volume and density. आता आपण काय बघू? आता आपण pressure आणि temperature बघू काय ते. Okay. So next is pressure. Sorry. ओके नाउ प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स है, एक एक करके प्यार से कन्वर्जन देखेंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट्स आर पास्कल्स, एटमॉस्फेयर एंड एमएम. मैं तीनों आपको दिखाता हूँ. ऑब्वियसली एज पर द एसआई यूनिट इट इज सपोज टू बी पास्कल्स विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके ये एसआई यूनिट है. ओके बट मोस्ट कॉमनली क्या क्या यूज होता है? ओके मोस्ट कॉमनली क्या क्या यूज होता है इज 1 एटमॉस्फेयर का पास्कल के साथ है 1.013 into 10⁵ पास्कल्स. यस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यू कैन से पास्कल्स. दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कन्वर्जन. एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ दिस. ओके ये प्लीज गाइस ध्यान रखें. ओके सबको ये कन्वर्जन पता रहना चाहिए. ऑलराइट अब उसके बाद आता है mm of Hg. तो 1 atmosphere is 760 mm of Hg. Okay so these are the 2 or 3 conversions that are usually used in chemistry. Okay they are usually used in chemistry. कौन सा? atmosphere, pascals and mm of Hg. ये ज्यादातर अपन केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं. ओके सो ये कम से कम आपको पता रहे. इसमें इन तीनों में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा. ओके ये तीनों आपको 110% आने ही चाहिए. ओके सब मिला के व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब अभी व्हाट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ये आपका आजू बाजू में जो एटमॉस्फेयर है पूरा, आप लोगों ने स्कूल लेवल में ज्योग्राफी सीखा है. ओके वो स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर, ओजोन लेयर, आयोनोस्फीयर, वो जो 4-5 लेयर्स आपने पढ़े हैं, सब लेयर का मिला के जो टोटल प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके देन व्हाट इज mm of Hg? mm is mercury, sorry mm is millimeter and Hg is mercury. ओके तो आप थर्मोमीटर में देखते हैं, आप लोगों ने थर्मोमीटर देखा रहेगा शायद. तो टेम्परेचर भी राइज होता है तो मर्क्यूरी की वजह से राइज होता है. याद है आपको? टेम्परेचर आप देखते हो तो मर्क्यूरी कॉलम में देखते हो. Yes, sir. हाँ तो वैसे ही Yes, sir. ब्लड प्रेशर के लिए भी शायद आपने देखा होगा मर्क्यूरी कॉलम होती है. ओके सो सिंपल सी चीज है. एक आप समझ लो किसी ने मुझे पूछा है व्हाट इज mm of Hg. तो बेटा समझ लो अगर ये आपका वो मीटर है, थर्मोमीटर है या स्पिग्मोमैनोमीटर है. ओके इसके अंदर मर्क्यूरी है, इसके अंदर मर्क्यूरी है. ओके और हम लोग यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. वी आर अप्लाइंग सम प्रेशर ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट. ओके तो अब क्या होएगा कि व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट मर्क्यूरी का हाइट ऊपर जाएगा. ओके तो क्या हाइट मिलेगा ना, दैट इज mm of Hg. ओके तो अगर मैं यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करूंगा ना ये इंस्ट्रूमेंट पे, तो मर्क्यूरी का हाइट कितना आगे जाएगा पता है? 760 mm तक आगे जाएगा. 760 mm. So that is why I say 1 atmospheric pressure is 760 mm of Hg. I hope you got the point. Okay? Yes, sir. Yes. अभी mm of Hg और torr, एक और यूनिट है torr, we'll discuss that. 1 atmosphere is also equal to 760 torr. Now torr is something that we do not use in our day-to-day life. That is usually used by high-level physics. In physics, आप machinery और instruments में use करते हैं. So that is something which is not very common for us. Okay? लेकिन सिर्फ पता रहना जरूरी है कि torr करके भी एक यूनिट होती है. Okay? And then in geography, we use the word bar. Okay, 1 atmosphere is equals to 1 bar.
ये ज्योग्राफी में सिर्फ नहीं होता, ये काफी जगहों पे होता है, बट अपने केमिस्ट्री में अपन कम यूज करते हैं। केमिस्ट्री में अपन कौन से दो पे फोकस करते हैं, जो मैंने ऊपर दो लिखे हैं वो। ओके, सो प्रेशर का यूनिट में क्या क्या आएगा, एटमॉस्फेयर आएगा, पास्कल्स आएगा एंड mm/Hg आएगा। ये 3 यूनिट्स आपको कुछ भी करके पता रहने चाहिए। ओके, ये दोनों अगर थोड़ा बहुत आपको याद नहीं भी आया तो टेंशन नहीं है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। mm/Hg और टॉर सेम है, और एटमॉस्फेयर और बार सेम है, तो एज सच कुछ अलग से याद रखने की जरूरत तो नहीं है आपको। ओके, प्लीज राइट दिस ऑन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। Sir, यस, sir, please view the sixth slide now. I got disconnected. I don't know what you taught. ये Yes, sir. इतना ही है बेटा, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर है। मैं पहले एक काम करता हूँ, बच्चों को ये लिख लेने देता हूँ, फिर आपको वो स्लाइड दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। Yes. ओके, Okay. yes, Jahan, psi psi is also a unit of pressure, but again they are not the commonly used pressure units. Okay, per square inch, तो वही हो गया ना, पर स्क्वायर इंच मतलब नीचे मीटर स्क्वायर आ गया ना एरिया, तो इट इज फोर्स अपॉन एरिया ओनली। ओके, तो स्क्वायर इंच मतलब एरिया हो गया। सो आइडियली उसको अगर हम लोग ऐसा यूनिट में देखने जाएंगे तो एनएम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होने वाला है, बट डिपेंडिंग अपॉन इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेसेस वो अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है। Done? Yes, sir. Okay. Now let us talk about the last one more unit of discussion, that is temperature. All right. So temperature में कैसा सीन है? We know that there are 3 units. There is a degree Celsius, there is a degree Fahrenheit, and there is a Kelvin. Obviously, the Kelvin becomes our SI unit for temperature. Now, what happened was कि temperature जब calculate करना था ना, when there was a requirement of calculating temperature, there was a scale decided. Okay, there was a scale decided. Let's see what's happening. ये 3 स्केल्स है, ऐसे समझ लो। ओके, और बोला क्या गया है कि जब टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो होनी चाहिए, द स्टार्टिंग वैल्यू जो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, एंड जो एंड पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
ओके, वो होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये अपने को बोला गया था। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया डिग्री सेल्सियस। जब आप अभी बंदा जब अकेला खेलता है ना, ओके, व्हेन द पर्सन इज द फर्स्ट पर्सन टू प्ले, अभी आप इमेजिन करो अगर आप खुद अकेले खेल रहे हो एक ऐसी गेम जो किसी और ने कभी पहले खेली नहीं, तो अगर किसी और ने कभी पहले नहीं खेली है तो अपने को जो चाहिए अपन वो रूल बना सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस ने क्या किया? अच्छा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट। तो डिग्री बोलते हैं अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट को ही तो हम 0 बोलते हैं, तो डिग्री सेल्सियस ने इसको 0 डिग्री सेल्सियस नाम दे दिया। ओके, और फिर उसने क्या किया? उसने उसकी स्केल को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अगर 100 से आप 100 पार्ट्स पे आओगे तो लास्ट में क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस का स्केल काफी सिंपल था, 0 to 100। ओके, लेकिन फ़ारेनहाइट क्या बोलता है? यार ये तो तू ऐसे अपना इजी है इसलिए तू कर लिया चुपचाप, बट ऐसा थोड़ी चलता है। इज लाइक थोड़ा आगे पीछे रिसर्च तो कर, थोड़ा और भी तो टेम्परेचर कम हो सकता है। सो फ़ारेनहाइट ने जब अपना रिसर्च किया थोड़ा थोड़ा, सो फ़ारेनहाइट वाज able to discover that -32 degrees is the temperature of water obtained from sea level। मतलब वाटर और आइस का कॉम्बिनेशन जो होता है, सॉरी आइस एंड सॉल्ट का, ओके, फ्रीजिंग मिक्सचर जिसको हम बोलते हैं। ओके, सो ही वाज एबल टू डिस्कवर दैट यार पानी का तो हम लोग है ना, अगर आइस को नमक के साथ डिजोल्व करते हैं तो -32 डिग्रीज तक जा सकता है। सो ही इज लाइक ओके दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर। तो मैं इसको मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बोलूंगा, मैं इसको 0 फ़ारेनहाइट बोलूंगा। ओके, मैं इसको 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलूंगा। किसको? -32 डिग्री सेल्सियस को। फिर -32 से 0 पे आना है तो +32 करना पड़ेगा। तो फ़ारेनहाइट का स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? उसने डिवाइड किया 180 पार्ट्स में, और 132 से 180 अगर ऐड करेंगे तो 212 होता है। Okay, so Fahrenheit was able to go to -32 डिग्री सेल्सियस। फिर फाइनली आ जाती है केल्विन की स्केल। केल्विन बोलता है इससे भी नीचे जा सकता हूँ, देयर इज समथिंग द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है और मैं इसको 0 केल्विन बोलेगा। दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। उसने उसके बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कोई भी एक्सपेरिमेंट में -273.15 से नीचे नहीं आया। ओके, और उसने किसको क्या बोल दिया? 0 केल्विन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट 0। अब -273 से 0 पे आना है तो +273 करना पड़ेगा। तो 273.15 केल्विन बिकम्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। फिर उसने भी 100 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड 273 + 100 इज 373.15 Kelvin. That is the boiling point of water. So these are the three different scales that we have. We have degree Celsius, we have Fahrenheit and we have Kelvin. Okay, आप देख रहे हो कि तीनों के स्केल्स में क्या सीन है, लेकिन गाइस कॉमन सेंस है कि तीनों के तीनों कर क्या रहे हैं? टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब तीनों में आपस में भी कोई रिलेशनशिप तो होनी जरूरी है। ओके, एंड अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द टू, द फॉर्मूला इज गिवन लाइक दिस: temperature minus starting point upon number of parts. Yes, temperature minus starting point upon number of parts. ये सिंपल सा रिलेशनशिप है तीनों के बीच में। ओके, yeah, so somebody asked me Fahrenheit once again. तो फ़ारेनहाइट क्या है बेटा? फ़ारेनहाइट भी दूसरा एक साइंटिस्ट है जो अपना टेम्परेचर का रिसर्च कर रहा है, एंड ही फाउंड आउट दैट अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट, ही फाउंड आउट दैट 0 डिग्री इज नॉट द लोएस्ट टेम्परेचर। 0 के नीचे भी जा सकता हूँ, और कितना जा सकता हूँ? तो -32 तक जा सकता हूँ। बराबर है। सो फ़ारेनहाइट ने -32 को उसके हिसाब से 0 बोला है। देखो, लोएस्ट वैल्यू को 0 बोलना है,
तो डिग्री के हिसाब से लोएस्ट वैल्यू ही 0 है, तो उसने उसको ही 0 बोल दिया। फ़ारेनहाइट बोलते हैं अरे लोएस्ट वैल्यू 0 नहीं है, मेरे हिसाब से लोएस्ट वैल्यू तो 32 डिग्रीज है, तो मैं उसको 0 बोलूंगा। तो फ़ारेनहाइट ने -32 डिग्रीज को 0 फ़ारेनहाइट बोल दिया। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस तो यहाँ पर है ना। Yes. बराबर है, Yes, sir. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस तो यहाँ Yes, पर sir. है। या जस्ट गिव मी अ मोमेंट। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. या ओके। सो अभी फॉर्मूला, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस तो यहाँ पर है, इसलिए वो -32 से आगे आने के लिए उसको +32 करना जरूरी है। देयरफॉर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट बिकम्स 32 फ़ारेनहाइट। और उसने जो उसकी स्केल बनाई उसने 180 पार्ट्स में डिवाइड किया कि मैं 180 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो 32 को अगर आप 180 आगे ऐड करोगे तो 212 निकलता है। ओके, और अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ये फॉर्मूला यूज करते हैं टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 टेम्परेचर्स। वी विल बी टेकिंग दिस एज आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। ओके, सो रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, और दूसरा हम लोग देख लेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस वर्सेस केल्विन। ओके, ये दो मोस्ट कॉमन वाले हैं। सो सी टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है डिग्री सेल्सियस का? 0, एज यू गाइस कैन सी वेरी क्लियरली। हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्ट्स? 100। फिर दूसरा टेम्परेचर कौन सा है? फ़ारेनहाइट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? 32। हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्ट्स? 180। अभी डिग्री सेल्सियस -0 इज डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180। सॉरी, ये 5 जा, ये 9 जा, फिर 9 वहां जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। -32 को वहां भेज देंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा? डिग्री फ़ारेनहाइट इज 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। बराबर है। सो वी हैव सीन दैट बॉडी टेम्परेचर विच इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं 37 लेता हूँ तो फ़ारेनहाइट इज 9/5 इंटू 37 प्लस 32 which is 66.6 plus 32 which is 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो हम लेते हैं, ओके, 37 डिग्री सेल्सियस is as good as 98.6 degree Fahrenheit. So this is the formula, this is the relationship between Fahrenheit and degree Celsius, and ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो पता रहे तो अच्छा है, बॉडी टेम्परेचर। ओके, सिमिलरली केल्विन की जब बात करते हैं, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू केल्विन -273.15 अपॉन 100। नाउ बेस्ट पार्ट क्या है? 100 कैंसिल हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस -0 इज डिग्री सेल्सियस इज केल्विन -273.15। ये इधर आ गया, तो केल्विन इज नथिंग बट डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। दिस फॉर्मूला is to be used only during derivations or expressions or law लिखते समय या something like that. Numericals करते समय you are free, as we have discussed before also, न्यूमेरिकल्स करते समय आप इतना जो 0.15 है वो स्किप कर सकते हो, उतना आप छोड़ दोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो सिंपल सी चीज है। अगर मैं बोलता हूँ मेरा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ओके, सो केल्विन में कितना आएगा? 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सो देयरफॉर
25 degree Celsius is nothing but 298 Kelvin. ओके, सो ये बेसिक सा रिलेशनशिप है जो पता रहना चाहिए. प्लीज राइट दिस डाउन द टेम्परेचर स्केल. Done, sir. Are we done? No, Yes. sir. Yes, sir. प्लीज कंटिन्यू. Yes, sir. ये लिख लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Guys done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we'll stop here for today. All right. Thank you so much for this. Chirag sir or Hiren sir, anyone there? हाँ सर.